Good morning, my dear student. Today, we are going to start your class 11th history chapter displacing indigenous people. My dear student, this is very important topic which we are going to read today. The topic is wind of change. Wind of change in Australia. My dear student, wind of change, same topic we have read in this chapter in the special case of America. I think there is no need to explain that in this whole chapter we are discussing the problem of the native people of America and Australia. I told you the problem of the natives of the America. Today we will discuss the problem of the Australian peoples. ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में, ये प्रॉब्लम कैसे बदली, कुछ नए सुधार हुए, क्या क्या हुआ, इन चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने यहां देखा इसके पहले के चैप्टर में, इसी चैप्टर में, इसके पहले के टॉपिक में, कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपियन सेटलर्स थे बड़ी संख्या में आए। 1948 टू 75 के बीच 20 मिलियंस यूरोपियन सेटलर्स दे set their life, they stable live in Australia. These are all I have informed. My dear student, I also told you about the condition of the natives. मैंने आपसे कहा कि it is not so easy for the natives as well as Europeans. European face also so many violating conflict towards natives. Natives, they don't know about that the Europeans who reached in Australia, gradually they acquired their native lands. They acquired their native lands. They didn't, वो नहीं समझ सके थे. And that's result, their population day by day decrease. My dear student, it is also important things that nowadays in Australia, according to census data 2005, only 2.4% natives lived in Australia till today. आज तक या 2005 till 2005, 2.4% native people lived in Australia. This is 2020. You can assume that the percentage decrease or increase. What will happen? क्या हुआ होगा? परसेंटेज बढ़ी होगी या परसेंटेज घटी होगी? नो डाउट, मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी जनसंख्या घटने की है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई होगी। ये सारी चीजें डिक्रीज क्यों हो रही थी पॉपुलेशन, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। वी हैव डिस्कस दैट व्हाई द नेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस डे बाय डे. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द मेन रीजन दैट वाज एपिडेमिक, एंड सेकेंड रीजन वाज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूरोपियन सेटलर्स एंड नेटिव्स. यूरोपियन सेटलर्स, they have the good weapons, they have muskets, they have gunpowders and such type of other weapons they uses. It was in their practices, but the natives, they have bow and arrow, the primitive weapons used by natives. So that's why natives have to face what? हार का सामना करना पड़ा. Natives were conquered by Europeans on the basis of their technology
ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यू वेपन्स। और फिर इन नेटिव्स को बड़ी संख्या में अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ लोग बाहर से आए हुए महामारियों के चलते, जो डिजीज आई जिसको यूरोपियंस लेके आए, कुछ उससे मारे गए, और कुछ जो बचे वो नेटिव लैंड एक्वायर करने के दौरान यूरोपियन से संघर्ष के दौरान मार दिए गए। इससे नेटिव की जनसंख्या डे बाय डे कम होती चली गई। हमने आपसे यह भी कहा था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि यूरोपीय जो बस्ती थी, यूरोपियंस जो टाउन्स जो थे वो अमेरिका की तरह डेवलप्ड एकाएक नहीं हो गए। वाई? बिकॉज द लैंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका। इन ऑस्ट्रेलिया द वास्ट डिजर्टेड लैंड इन द इनर पार्ट, that was the great Australian desert. Europeans settled themselves in coastal region of Australia. So the mega city that was developed in the coastal region, not the inner part. Internal parts, the land was semi-arid. The pastoral industry and the mining industry, farming also developed gradually in Australia. Grapes plantation, wine factory, and these type of alls developed in Australia gradually. I mean to say that एक लंबा समय लगा इनको बनाने में। कहता है कि इनका आर्थिक विकास जो हुआ ऑस्ट्रेलिया का, वो धीरे धीरे हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास एकाएक नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक लंबा समय लगा। यूरोपियंस को भी काफी मेहनत करनी पड़ी, और इनमें यूरोपियन से भी ज्यादा फार्मिंग में काम करने वाले यहां के नेटिव्स थे, जिनका यूज यूरोपियंस ने अपने इनकम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किया। हमने आपसे यह भी कहा था कि 1911 तक आते आते ऑस्ट्रेलिया कि एक कैपिटल बनाने की बात की गई, एक राजधानी बनाने की बात की गई। ये कैपिटल कौन सा होगा? तो कैपिटल के रूप में व्हाइट व्हीट गोल्ड का नाम लिया गया, लेकिन जल्दी व्हाइट व्हीट गोल्ड की जगह कैनबरा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनी। कैनबरा एक नेटिव वर्ड कैनबरा से बनी हुई थी। कैनबरा का मतलब है मीटिंग प्लेस, एक ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठा हों, लोग बातें करें, अपने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे विचार विमर्श करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई मीन टू से दैट ड्यूरिंग 1911 ऑस्ट्रेलियन पीपल डिसाइडेड दैट देयर कंट्री शुड बी वन कैपिटल। द नेम ऑफ द कैपिटल सजेस्टेड बाय द यूरोपियन सेटलर्स दैट वाज व्हाइट व्हीट गोल्ड, बट after some time they suggested the other name that was Canberra. Canberra, that was the native word, their meaning is the meeting place. Canberra made Canberra. Canberra it means meeting place. Meeting place के रूप में बना। कहता है इसी के आधार पे जो वहां के मूल निवासी थे, ऐसे डिफिकल्ट लाइफ को वहां पे उनको सफर करना पड़ता था। मूल निवासी सख्त हालातों में खेतों में काम करते थे, उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। इट मीन्स विच टाइप ऑफ हार्ड लाइफ natives living in their native lands, that was a very little bit difference between the slave and that type of farmers. It means natives और दास के बीच बहुत कम अंतर था। इतनी उनको हार्ड लाइफ जीनी पड़ती थी, कठिन जीवन उनको जीना पड़ता था। कहता है उसके बाद कैलिफोर्निया जोसेफ, अब यूरोपियंस को चीप लेबर चाहिए थी, सस्ता श्रम चाहिए था। और सस्ता श्रम कैसे मिलेगा?
तो कहते हैं सस्ता श्रम आपको तभी मिल सकता है जब आप यहाँ के नेटिव लोगों का सपोर्ट करेंगे। नेटिव्स के सपोर्ट के आधार पे ही आपको चीप लेबर मिलेगी, और इन लोगों ने नेटिव्स का यूज चीप लेबर के लिए किया। इस जो पूरी डिपेंडेंसी नेटिव्स के ऊपर थी, बाद में कनाडा और अमेरिका के लोग इससे घबरा गए। 1974 तक लोगों के मन में ये बात डर पैदा कर रही थी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, और इसीलिए बाद में जो गैर वाइट लोग थे, जो गैर गोरे थे, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने पर रोक लगा दिया गया। और यहीं से अब डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। अब विंड ऑफ चेंज ऑस्ट्रेलियन की कंडीशन को शो करता है। ये विंड ऑफ चेंज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड योर टॉपिक। I hope everyone have book page number 229 were given this topic. My dear student, I have already told you the condition and situation of the Australia during 16th to 18th century, especially 18th and 19th century, when the natives interact with the Europeans and which type of problem they faced. There is no need to explain again. The topic wind of change. This topic gives us a lot of information that why the natives history not in syllabus of Australia. Why their history not told by any historians. What was the reason behind that? These are all we are going to discuss. In 1968, people were electrified by lecture by the anthropologist W.E.H. Steiner entitled The Great Australian Silence. W.E.H. Steiner, 1968, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। W.E.H. स्टेनर ने एक किताब लिखी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस के नाम से, महान ऑस्ट्रेलियन चुप्पी के नाम से। और इस ग्रंथ में, इस बुक में उन्होंने नेटिव्स की कंडीशन को एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। I mean to say that W.E.H. Steiner, who wrote a book, A Great Silence of Great Australian Silence, the Great Australian Silence book wrote by W.E.H. Steiner. W.E.H. Steiner. In this book, Steiner tried to explain the condition of natives of Australia. 1917, decades of 1917, the North America as well as Australia and their natives, they aware of their rights. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीजों के लिए इन चीजों को समझा, इन दिक्कतों को, इन प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कर रहे थे। कहने का सेंस इतना ही है कि फ्रॉम द 1970 द एज वाज हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका, देयर वाज एन द eagerness to understand the native not as anthropological curiosity but as communities with distinct culture, unique way of understanding nature and climate, with a sense of community which had vast bodies of stories, textile and paintings and carving skills which should be understood and recorded and respected.
Underlying it all was urgent question which Henry Renards later the articulated in the powerful book why weren't not we told. The condemned the practice of writings Australian history as thought it had begun with Captain Cook's discovery. My dear student, we have read about W.E.H. Stanners and their book, The Great Australian Silence. Stanner tried to explain the problem of the natives by their books. After all, we came to be known as the next anthropologist. Their name was Henry Renards. Henry Renards also discussed about the condition of the natives in his book. What weren't we told? हमें बताया क्यों नहीं गया? Why? What weren't we told? इसमें उन्होंने यहाँ के नेटिव्स लोगों की बातें की. ये वर्ड what weren't we told, that word what explain, क्या नहीं बताया गया, किन चीजों की बात हेनरी रेनाल्ड्स कर रहे थे. हेनरी रेनाल्ड्स ने कहा कि अब जो नेटिव्स हैं उनको एक नए तरीके से समझने और जानने की जरूरत है. वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेटिव्स, not I mean to say that the aborigine, I mean to say the discriminative way. We have to read them as a which type of people? The specific type of people, distinct culture. उनके आधार पर उनको समझने का प्रयास. और यहां पे हेनरी रेनाल्ड्स ने कुछ बातों को कहा. हेनरी रेनाल्ड्स ने कुछ चीजों पर ध्यान दिया. अगर आप इन चीजों को समझें, आई मीन टू से दैट फ्रॉम द 1970s as was happening in North America, there was an emergence of understand native not as anthropological curiosity but as communities with distinct culture, unique way of understanding nature and climate, with a sense of community, with had vast bodies of stories, textiles, paintings and carving skills, which should be understood and recorded and respected. Underlying it all was the urgent question which Henry Renards, I mean to say that Henry Renard asked question on the basis of that the person, I mean to say that a specific community who had the specific knowledge of nature and climate, who have their art and craft culture. कहने का सेंस ये था कि अब ऐसे समुदायों के रूप में समझने की आवश्यकता महसूस हो रही थी. नेटिव्स को एक ऐसे ग्रुप के रूप में नहीं, एक मानव विज्ञान में एक छोटे से सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कम्युनिटी के रूप में जिनके पास अपनी एक संस्कृति थी, अपना एक आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर था, अपना एक नॉलेज का विशाल भंडार था, जिसमें उन्हें जलवायु का, पृथ्वी का, क्लाइमेट्स का अच्छी जानकारी थी. और कह रहे हैं कि हमें इनके इस चीजों का आदर करना चाहिए था. इनके इन काम जो अभिलेखन थे उनका ये उनके इन सारी चीजों को हमें कंपाइल करना चाहिए था. अब यहां पे वही अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया इनके बारे में, इनकी इन चीजों के बारे में.
इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की तीखी आलोचना की गई है जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया में। आई मीन टू से दैट कि हेनरी रेनॉल्ड्स ही क्रिटिसाइज दैट द ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम when the Australia discovered by Henry Cook during 1770s. Before the history of Australia, it was not explained by the European settlers or the Europeans intellectual person. These matter was highly criticized by Henry Reynolds in his book What weren't we told. इसके बाद सिर्फ जो वहां के नेटिव थे और नेटिव की जो कल्चर थे उनका अध्ययन शुरू हुआ हेनरी रेनॉल्ड्स के प्रयासों से, डब्ल्यू एच स्टेनर के प्रयासों से। और जब ये दोनों बुक मार्केट में आई, व्हाट वरंट वी टोल्ड और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, दिस बुक ग्रो what? The curiosity to know about the natives of Australia. This was a time when the history, when the studies, research that was started to understand the native people of Australia and their cultures. यहां से स्टार्ट हुआ और अब यहां के मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में कई सारे डिपार्टमेंट खोले गए, आर्ट गैलरीज लगाई गई। इन आर्ट गैलरीज में जो ये देसी लोकल कलाएं थी उनको शामिल किया गया। देसी संस्कृति को समझने के लिए जो कल्पनाशील तरीके से दिमाग से क्रिएट की गई थी उनको संग्रहालयों में जगह दी गई। और अब मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास को लिखना शुरू किया गया। अब नेटिव्स को प्रमोट किया गया कि यू हैव टू राइट अबाउट योर हिस्ट्री विच यू हैव सेव एज ओरल फॉर्म, यू हैव टू राइट इट। आप उनको लिखिए। दे वर प्रमोटेड बाय दीज टाइप ऑफ हिस्टोरियंस, these type of intellectual person. These type it means W.H.E. Steiner and Henry Reynolds type. And thereafter the various people who favored the natives ideology, who favored that natives were discriminated by the Europeans. Dear student, I hope you are getting what I am saying. जब मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना हुई, आर्ट गैलरीज लगाए गए और फिर देसी संस्कृति को समझने वाले कल्पनाशील तरीके से उनको सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह दी गई, ये सब एक अद्भुत प्रयास था। ये प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक काफी कुछ विस्मृत के गर्त में जा चुका होता, लोग उन चीजों को भूल चुके होते। 1974 मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसमें मूल निवासियों की संस्कृतियों तथा यूरोप और एशिया के अप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों का समान आदर की बात कही गई है। 1970 के डिकेड्स में यूएसए और यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में ह्यूमन राइट्स जैसा वर्ड यूज किया और अब ये ह्यूमन राइट का वर्ड ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया की जनता को भी इस शब्द का एहसास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण की औपचारिकता बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है,
सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलिस कहती थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलिया जमीन को टेरा न्यूलिस क्यों कहती थी? टेरा न्यूलिस मतलब कि टेरा न्यूलिस एक ऐसी जमीन जिसपे किसी का अधिकार नहीं है। टेरा न्यूलिस का मतलब था जो किसी का नहीं है। इसके अलावा वहां के आदिवासियों, उनके रिश्तेदारों से छीने गए जो मिश्रित मिक्सचर ब्लड वाले लोग थे, उन बच्चों का लंबा यातनापूर्ण इतिहास हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज मैटर विद द नेटिव पीपुल्स। Since then, universities department have been instituted to study native culture. Galleries of the native art have been added to art galleries. Museums have been enlarged to incorporate the dioramas and the imaginatively designed rooms explaining native culture. And the natives have begun written their own life histories. This has been a wonderful effort. It has also occurred at the critical time, because if native cultures had remained ignored by this time, much of such culture would have been forgotten. From 1974, the multiculturalism has been official policy in Australia, which gave equal respect to native culture and to the different cultures of the immigrants from Europe and Asia. The multiculturalism policy, when it became the official policy, when it became the main policy of Australian government, it promote the native history, it promote the native culture as well as European culture also. From the 1917, as the human rights began to be hard at meeting of the UNO and other international agencies, the Australian public realized that the dismay that in contrast to the USA, Canada and New Zealand, Australia had no treaties with the natives formalities, the takeover of land by Europeans. The government had always termed the land of Australia terra nullius. This is belonging to nobody. This is belonging to nobody. किसी का नहीं है जमीन. There was also a long and the agonizing history of children of mixed blood native Europeans being forcibly captured and separated from their native relatives. Agitations around these questions led to inquiries and two important decisions. One, to recognize that the natives had a strong history bond with the land which was sacred to them and which should be respected too, that while past act could not be undone, there should be public apology for the injustice done by children in attempt to keep white and colored people apart. This is very, what I mean to say, that on the basis of awareness in Australia, there were the changes that has come. क्या बदलाव आए? क्या चीज बदली? तो कहता है कि जो पिछली गलतियां थी, जो महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें बदल रही थी, कि अब आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए जो मिक्सचर ब्लड वाले लोग थे, उनके बच्चों का एक लंबा और यातनापूर्ण जो इतिहास था वहां पे, उन इतिहास को नए तरीके से एक्सप्लेन करने का बात की गई। अब यहां पे इन सवालों पे खड़े हुए जो आंदोलन चले, एजिटेशंस चले, उनके कारण तमाम तहकीकात शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट वाज टेकन बाय दैट गवर्नमेंट्स। फर्स्ट, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत और ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। आई मीन टू से दैट फर्स्ट, क्या फर्स्ट डिसीजन, want to recognize that the natives had strong historic bonds with the land which were
sacred to them and which should be respected, and two, that while past act could not be undone, there should be public apology for the injustice done to the children and attempt to keep white and colored people apart. पहला ये था कि जमीन पे जो ट्यूरानिलस शब्द का यूज कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के यूरोपियन सेटलर्स, अब वो इस तरह शब्द का यूज नहीं करेंगे। जो पहला डिसीजन लिया गया उसमें यही कहा गया कि इस बात को मान्यता दें कि मूल निवासियों का जमीन के साथ जो कुछ उनके लिए पवित्र था, जो उनके लिए बहुत पवित्र था, उससे मजबूत उनका ऐतिहासिक संबंध था, उसका आदर किया जाना चाहिए। और दूसरा कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन व्हाइट्स और जो ब्लड मिक्सचर लोग हैं, कलरफुल रंग वाले लोग हैं, उनको अलग रखने और उनके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच वी रीड टुडे, माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल try to understand the condition of Australia and their natives. ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स लोगों के इतिहास को हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ने का प्रयास किया और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में विंड ऑफ चेंज हुई, बदलाव चले, और ये बदलाव ही ऑस्ट्रेलिया में एक नई संस्कृति का सूत्रपात किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।